Okay. See this question. Can you see it? Yes. sir. This question can be done like this. Could you get this? देखिए इसमें if we keep the screen at distance more than 4 times of the focal length. Here is the object. Here is the image. If we keep the screen at distance more than 4 times, so we get the 2 images. All right. So यहाँ से rays ऐसे गई. They are getting focused at certain point. Okay. This is object. This is image. Now, if we keep the object here, image will be here. Already we have seen in lens and mirrors. One question we did when object was at 15, image was at 30, focal length was 10. And when we kept the object at 30, image was at 15. So, or from diagram itself we can see, यहाँ पे object है तो image यहाँ होगी, यहाँ पे object है तो image इधर होगी. It means, suppose this is you, and this is V. तो बाद में इधर से जब हम रेज भेजेंगे तो ये जो V है, this will become U, this will become V. So both will interchange. In second case, this distance will be equal to V. As far as distances are concerned, they will be interchanged. ठीक है, तो यहाँ से देखो U plus V should be how much? 90. That's what they are given. Distance between object and screen is 90. और if you see this distance, देखो ये हो गई ये आपकी V है. See carefully. This is V and this much is U. तो displacement will be V minus U. ये V है और ये U. तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? Displacement of the lens. ठीक है नॉट? ये U था और आपने इधर V शिफ्ट किया V पर. तो V minus U is nothing but a D. That's all. Now you can do it easily. Add them. U goes 2V is equal to 110. V is 55. Therefore, U minus real object minus 90 minus 55. That's minus 35 centimeter. Using the formula, V1 V की वैल्यू पुट कर दिए प्लस हो जाएगा. सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है. If you solve it, 21.4 answer comes. ठीक है. Anything is missing here? No? चेक कर लो आ रहा है क्या आंसर. नहीं, just check it. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो ये this is one of the methods. Otherwise इसको सॉल्व करना पड़ता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, उसके 2 रूट्स होते हैं. x लेके 1 u will be ऐसे करना पड़ता है. u is equal to minus x
v will be 90 minus x. सॉल्व करेंगे, x के दो रूट्स मिलेंगे, x1 and x2. Then x2 minus x1 will be equal to displacement, and then solve करेंगे तो हमें focal length मिलती है. That is lengthy quadratic equation से solve करना. This is one of the easier method. देखो ये एक और क्वेश्चन था, ये कल हो गया था ना, yesterday we did it, 19th. क्या होना चाहिए? Maximum focal length should be 1/4 of the distance between bulb and image, distance between object and screen, distance between if you are interested how this comes, let me show you. देखो क्वेश्चन नंबर 19 का जो ये पॉइंट है 1/4 वाला, let me show you. I have done the derivation in fact, but this is not in our course. This is useful for JEE and NEET. जो कैसे किया हमने इसको, एक तो ये फोकल लेंथ निकालने का था, u को -x ले लिया, v को d - x, लेंस फार्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और ये सॉल्यूशन ये आया देखो, जिसमें x1 will be minus, x2 will be plus, one of the roots will be minus, other roots will be plus. तो x2 will be this much, और x1 will be this. तो दोनों का जो डिफरेंस है x2 minus x1 will be d. That's what we are written. दोनों की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, d/2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे. तो इसको स्क्वायर करके सिंप्लीफाई किया तो फोकल लेंथ का फार्मूला ही बन गया, d² minus d² upon 4d. Capital D is the distance between object and screen, and small d is the displacement. यहाँ पे दिख रहा है इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा. Capital D was given 90, ये 20 दिया था, वैल्यू पुट करके से, बट ये दिस इज नॉट द फार्मूला इन आवर टेक्स्ट बुक, इसीलिए डायरेक्ट इसको यूज नहीं कर सकते थे. कंपटीशन में यू कैन यूज इट, d² minus d² upon 4d. ऑलराइट. और ये जो रूट के अंदर है, अगर ये रूट 0 हो जाए ये वाला, तो ओनली वन आंसर विल बी देयर. x का एक ही सॉल्यूशन होगा, दैट विल बी 4f होगा. अभी जो हमने सेकंड न्यूमेरिकल देखा था वो 4f वाला था. d is equal to 4f, f was d/4. ये तो हमने इससे सॉल्व किया. और अगर ये रूट की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो दो रूट्स रहेंगे, दो इमेजेस बनेंगी, जैसा कि उसे प्रीवियस क्वेश्चन में था. और इफ d की वैल्यू लेस देन 4f है, ये देखो लेस देन 4f, तो ये इमेजिनरी हो जाएंगे. लेस देन 4f में or we can write this is less than 0. In other words, d is less than 4f. No real image will be formed. अगर तुमने दोनों ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस 4f से कम कर दिया, एक भी रियल इमेज नहीं बनेगी. So that was the point which we used in the next question. और एक और information you can take, if O is the size of the object, I1 and I2 are the sizes of the image, then O will be under root of I1 dot I2. यहाँ पे देखो, एक केस में बड़ी इमेज बनती है, और जब लेंस को शिफ्ट कर दिया छोटी इमेज बनेगी. इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, अंडर रूट ले लो, that will be the size of object. So that is the extra point those who are going for competition can just see. सीआरडी बुक में हम लोगों ने डायरेक्ट कर लिया लेंस फार्मूले से और u and v इंटरचेंज करके.
All right, let's continue with the very important topic now. Most important topic coming up of the day optics is prism. ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम करते हैं डेरिवेशंस प्लस न्यूमेरिकल्स बोथ. देखो, रिफ्लेक्शन थ्रू द प्रिज्म. प्रिज्म से रिफ्लेक्शन, सपोज दिस इज द प्रिज्म यू हैव सीन इन द लैब. ऐसा ये द प्रिज्म एंगल, रेज इधर आती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, दो बार इधर से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है. नाउ प्रिज्म आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द डिस्पर्शन इफेक्ट ऑफ लाइट. व्हाइट लाइट जो है सनलाइट को इसके ओरिजिनल कलर्स में ब्रेक करना. टू स्टडी द spectrum found by the lens, and also lenses are used to produce the deviation in the light. अगर हमें लाइट को टर्न करना है 90 डिग्री पर या 180 डिग्री पर without losing the intensity, we can do it with the prism. Phenomena involved will be TIR. TIR में क्या होता है? टोटल रिफ्लेक्शन होता है 100%, नो लॉस. मिरर्स में टोटल नहीं होता. some light is absorbed. So in that sense, prisms are useful in binoculars and all. They are used to change the direction of light. All right, so let's learn about the prism. A is called prism angle or apex angle or refracting angle of prism because it is between the two refracting surface. One is here, other is here. उन दोनों के बीच में है रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बीच का एंगल है ए. ठीक है, रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी समथिंग एल्स. यहाँ पे जो आर आएगा R1, दैट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बट रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए. बोथ आर डिफरेंट. Are you getting? Okay. Now, for equilateral prism, A will be 60. Are you there or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Keep responding. A will be 60 for equilateral prism. ये 60 हो जाएगा equilateral prism के लिए. All will be 60 है ना, including other angles. Now, relation for refractive index in terms of prism angle, that is A, and angle of minimum deviation. ठीक है, तो that is also termed as a prism formula. Deviation क्या है? देखो यहाँ पर, just let me show you the terminology of the prism. तो देखो ये लाइट इंसिडेंट की इधर से आई, कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ से बेंड हो गई वो नॉर्मल से. तो R1, एक मिनट, तो R1 will be what? Angle of refraction. R2 will also be angle of refraction here. E is called angle of emergence. इस एंगल से इमर्ज हो रही लाइट. ठीक है, and initially light was going like this, finally it is going like this. तो इसको extend कर दिया जाए. This is called deviation, angle of deviation. ठीक, and here is the normal. This is also the normal. ठीक है, उधर भी है normal. This. All right, ये prism angle है. Now we can see this coordinate, this triangle.
sum of the angles R1 plus R2 plus angle N will be how much? 180 degree. ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स और 180 वो हम लिखने जा रहे हैं अभी, ठीक है। हाँ ऑलराइट, तो देखो ये इंट्रोडक्शन हो गया उसका। in triangle R1 plus R2 plus angle N is equal to 180. Therefore, angle N will be 180 minus R1 plus R2. R1 and R2 को इधर शिफ्ट कर दिया. This is okay, simple geometry. Now, यहाँ तक comfortable है? This derivation is very frequently asked in the board's examination. Now, if we consider this quadrilateral, ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, तो ये a plus n कितना होगा? Other two angles will be also 180. टोटल कितने होते हैं? टोटल इंटीरियर एंगल कितने होते हैं? सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360. तो ये दोनों मिला के 180 है, तो a plus n will also be 180. So that's what is the next point I have written. Can you see? Yeah. Is it visible now? In quadrilateral, Q and R angle, ये वाला और ये वाला 90 है. So other two angles will be added, will be, तो ये 180 हो गया, तो remaining two angles will also be added up, will be 180. ठीक है, तो यहाँ से देखो n की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी हमने, ये वाली वैल्यू पुट कर दी n की इसमें, तो 180 gets cancelled. A is equal to R1 plus R2. तो प्रिज्म एंगल जो है, ये अंदर के जो एंगल्स हैं R1 एंड R2 के सम के बराबर है. गॉट इट? यहां तक ओके? Yes, sir. Now focusing on the deviation. Can you tell me what will be the relation for deviation? यहाँ पे देखते हैं डायग्राम में, देखो deviation है, ये deviation है. Exterior angle है, it will be sum of the two farther interior angles. इसका sum और इसका sum. But ये कितना होगा बोलो? How much will be this angle? Can somebody tell me this angle? So I minus R1. I minus R1, क्योंकि ये ऐसे क्रॉस लाइन है, ये I है तो टोटल I है, उसमें से R1 माइनस हो जाएगा, R minus R1. Similarly here it will be E minus R2. तो डेल क्या होगा? इन दोनों का सम हो जाएगा, I minus R1 plus E minus R2. That's what is the next step. फादर इंटीरियर एंगल्स का सम होता है एक्सटीरियर एंगल. तो यहाँ पे लिखा मैंने, फ्रॉम फिगर डेल इज I minus R1 plus E minus R2. I plus E एक साथ कर लिया और माइनस R1 plus R2 टुगेदर, एंड ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी. R1 plus R2 की वैल्यू A होती है, ये आ गई. तो दिस इज द रिलेशन फॉर डिवीजन. और दिस वन, ए को इधर हमने शिफ्ट कर दिया, तो डेल प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई. आई एंड ई एक साथ रख दिया, डेल एंड ए को एक साथ कर दिया. और यू कैन रिमेंबर दिस, दोनों में से एक, बोथ आर सेम. और यू कैन रिमेंबर डेल इज इक्वल, डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ
इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस, दोनों को ऐड करके a माइनस कर दो उसमें से, व्हाट यू गेट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ द रे। ठीक है, बहुत एक फार्मूला लर्न कर लो ये वाला चाहे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं, दे विल गिव यू आई, दे विल गिव यू ई, they will give you a, you will be asked to find out the division. If you remember this relation, then only you can do it. Now moving further, when I increases, आप I को लो वैल्यू से, ये I है, और बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, I you increase it, तो क्या होगा, डेल comes down, ये डिक्रीज हो जाता है. It is found experimentally, if I goes up, डेल comes down. आप टेबल में लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं वहां पर प्रिज्म का, तो धीरे धीरे इंसिडेंस लाइट का एंगल बढ़ाइए, तो डिवीजन चेक कीजिए. देयर आर मेथड्स टू चेक द डिवीजन इन द लैब, ऑप्टिकल बेंच प्रिज्म को रख के करना पड़ता है उसको. तो डिवीजन कम्स डाउन एंड बिकम्स मिनिमम, डिक्रीज होता है उसका ग्राफ एक सर्टेन एंगल के लिए. जैसे जैसे ये गोज अप, दिस गोज डाउन, एंड दिस विल बी मिनिमम. इन दैट केस, जब ये मिनिमम हो गया, तो रेज विल बी, आई विल बी इक्वल टू, इन अदर वर्ड्स ये सिमेट्रिक हो जाएगा पूरा. ये लाइन पैरेलल टू द बेस हो जाएगी, ये एंगल दिस आई एंड दिस ई बोथ विल बी इक्वल. ये पैरेलल टू बेस हो जाएगी, इसकी पैरेलल हो जाएगी दोनों, और क्या होगा, और ये R1 एंड R2 दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो थ्री थिंग्स विल हैपन. I will be R1 will be equal to R2, उसको R ले लेंगे, and rays inside the prism will be parallel to base because of symmetry. Because of symmetry, दोनों रेज सिमेट्रिकली सिमेट्रिक स्पेलिंग सही, ठीक है. तो ऐसे बनेगा बिल्कुल डायग्राम, ऐसे ऐसे सिमेट्रिक हो गई, तो एंगल्स भी ये इक्वल हो गए, ये भी इक्वल हो गए, रे पैरेलल टू बेस हो गई. These are very useful point, very useful for competition point of view also. These 3 points. Now a कितना हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा, तो r will be equal to a by 2. तो r मिल गया हमें. सिमिलरली ये जो रिलेशन हमने दिए वाला रिलेशन, इसमें e एंड i दोनों इक्वल है, तो लेफ्ट साइड में ये वाला 2i हो जाएगा यहाँ पर, और ये डेल जो है मिनिमम, डेल m, डेल विल बी बिकम कन्वर्टिंग इनटू डेल m. तो यहाँ से i की वैल्यू मिल गई, तो इसने स्लो लगा दिया साइन i बाई साइन r. तो साइन i की वैल्यू ये पुट की, r की वैल्यू ये पुट की. डेल m इज द मिनिमम डिवीजन एंगल, तो साइन a प्लस डेल m बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, तो अगर दूसरे मीडियम में है, सपोज प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और वो n1 मीडियम में है, तो 1 हो जाएगा, नीचे n1 हो जाएगा. अभी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, एयर में होता है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाता है. दूसरे मीडियम में है, तो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे प्रिज्म को, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को. जैसे वाटर में डाल दिया हमने, तो इक्वेशन क्या बनेगी, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng हो जाएगा, वाटर का Nw, वाटर से डिवाइड करना पड़ेगा उसको. गॉट इट. तो डेरिवेशन NCS यहाँ पर ही है, इतना ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखने. Can you see it?
Are you there or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any difficulty? No, sir. Okay. तो note it down. इसका ग्राफ भी बोलते, draw the graph of variation with respect to angle of incidence I. तो डेल का ग्राफ I के साथ ड्रा करना है, तो it will be U shape curve, but non-symmetric. It will be bending one side. All right. Shall we see the graph now? Variation. Anything you want to ask here in this derivation? No, sir. Okay. ग्राफ देखिए ऐसे आएगा. देखिए टेक्स्ट बुक का ग्राफ है, वेरिएशन ऑफ डेल विद रिस्पेक्ट टू आई, ऐसा कुछ आता है, नॉन सिमेट्रिक ऐसा था. तो जब आई गोज अप, deviation goes down at one particular angle, this will become minimum. इसको डेल एम लिख सकते. मिनिमम हो गया, फिर एंगल बढ़ाएंगे तो फिर बढ़ता है वो डेविएशन. तो यहाँ पर सपोज इफ वी टेक दिस एंगल, corresponding to this we get the two angle, एक I और दूसरा एंगल E होगा. यहाँ पे देखो फॉर अदर डिविजन, वन विल बी I, अदर विल बी E. यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, I will be equal to E. Can you see this? आ रहा समझ में? देखो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्लोज टू ये सपोज ये 40 दिया आपको, ये दिस इज से 38 के आसपास है. When angle of incidence is 38, so this will be nearly 70. जब आप इंटरचेंज कर दो, इसको I बना दो तो ये E हो जाएगा. मतलब रेज वापस भेजो, यहाँ से कहाँ था, देखो सपोज ये कुछ 38 है और ये आपका 70 आ रहा है. अब इधर से भेजो रेस, दिस विल बी I, दिस विल बी E, ये वापस आ जाएंगी रेस. रिवर्सिबिलिटी हियर आल्सो. ठीक है, तो इसीलिए ऐसा शेप आता है उसका. One angle is acting as a I, other is E, and both are interchangeable because if we reverse the rays, I will become E and E will become I. तो इस तरह से दो, for two angles we get one deviation, single deviation. For two angles पहले आपको इस एंगल पे 50 डिग्री मिलेगा, फिर corresponding to this angle you will get 50. But there will be one situation where I will become E. Corresponding to that, we get the minimum deviation. ठीक है, तो you don't have to write these values. ठीक है, बस यहाँ पे I लिख सकते, यहाँ पे E लिख, corresponding to this del M लिख सकते. Is that del? Is that, because you don't know these values. Experimentally we get this. ये value कहाँ से calculate करेंगे हम? They have done the experiment and drawn the diagram, but you don't have to write these values. All right. एक पॉइंट और देखो इधर से, this distance is less and this is more. That's what I was telling. Non-symmetric. It is not exactly U shape. Looks like VM. वो भी थोड़ा bend है. What will be the answer of this question?
What will be answer of this question? Sir, option B. Yes. ये जो रे होती है ना, मिनिमम डिविएशन पे ये ऐसे पैरेलल टू द बेस हो जाएगी एंड दिस विल कम लाइक दिस. टू कंफ्यूज यू दे हैव गिवन दिस पैरेलल. एक जनरल डायग्राम दे दिया ये, बट यू हैव टू बी specific about the minimum deviation. This ray will be parallel to the base, that will be horizontal. So QR should be parallel to base. ठीक है, तो that point already we have seen minimum deviation पे क्या क्या होता है. Moving further, तो ये एक easy and important question है for board's examination point of view. In equilateral prism, minimum deviation is 30. Find the speed of light through the prism. How to get this question? क्या करना पड़ेगा पहले? What to do first? We have to find n with the prism formula. Then V will be. उसके बाद क्या करना पड़ेगा? V निकालना है. How to get V? C by n. n से divide कर देंगे C को. Equilateral prism में A will be 60. तो n देखिए कितने आ रहा है prism formula लगा के. Sin A plus del m by 2 upon sin A by 2. Yeah. Are you able to do it? Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay, क्या आ रहा है आंसर बताइए. n नहीं निकल पा रहे तुम लोग ज्योमेट्री सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट करके. What is Sir, the big n deal in को that? 1 by root 2 आ रहा है. 1 by root 2 कैसे आ रहा है? Sir, n has root to be greater than n has to be greater than 1. कभी भी n less than 1 नहीं आएगा. ठीक है. ये absolute effective index है, which is always greater than 1. Value put की sin 45 by sin 30. Bring the values further, we will get 2 by root 2, which will become root 2. And v is equal to c by n. Divide कर दिया. 1 by root 2 की वैल्यू हमने AC में पढ़ी है कितनी है? 0.707 multiplied by c will give you this much. Got it? Yes. Yes, sir. Okay, note down. PM questions are frequently asked in the boards and competitive examination. So you have to remember all these points.
Let's see further. जैसे ये क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है ना, if refractive index of prism is n is equal to cot a by 2, where a prism angle and find minimum deviation angle del m. So again, use the prism formula and trigonometry, little bit of trigonometry, you will get the answer. This was also asked in NEET examination last to last year. देखो यहाँ पर, can you see? N की वैल्यू cot a by 2, cot a is nothing but cos a upon cos a by 2 upon sin a by 2, ये कैंसिल हो गया, और इधर आपका cos है, तो cos को हम sin में कन्वर्ट कर लें, बिकॉज राइट हैंड साइड में sin नहीं है, इसको sin में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 2 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, अभी sin sin हट जाएगा और ये 2 भी कैंसिल हो गया. इफ यू सिंप्लीफाई, डेल एम इज कमिंग पाई माइनस 2 है, तो यहाँ पे आपको इतनी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए सॉल्व करने की. ठीक है, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन. Yes, sir. नोट डाउन दिस. ये आपके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की क्वेश्चंस पेंडिंग है. लेट्स सी, चलो वो देख लेते हैं. पहले इसके एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के क्वेश्चन दिए थे हमने आपको. ठीक है, तो ये आंसर आ गया, समझ में आ गया. Yes. Yes, sir. Okay. Now what the schedule? Tomorrow we don't have class, huh? And day after tomorrow we have the test. Full portion test means that book. First book, 40 questions, MCQ, no negative marking, and time for 40 questions. You will get roughly 1 minute and 1 hour and 20 minutes के आसपास, or 25 minutes. ठीक है. Timing most probably it will be morning time only. Timing will come. It should be same timing, extra time. It can go up to your Sunday. I think Sunday and day after 17 को, so we can have extended class for extra timing के लिए. All right. तो आप लोगों का शेड्यूल भी आने वाला 18 को है ना. Yes, sir. Term 1 and term 2. Term 1 are in November, December, and term 2 is they are in March, April. Term 2 will contain subjective and objective. ये जो second book है, इसमें subjective questions will be asked in your term 2 examinations, which will be in March, April. ठीक है. तो भाई ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. एंगल ऑफ इमर्जेंस 40 दिया है, एंगल ऑफ deviation is 30. Find the angle of incidence in equilateral prism. क्या होगा इसका आंसर?
बीच में एक फार्मूला आया था, उस पर बेस है ये। इफ यू डोंट रिमेम्बर दैट फार्मूला यू कैन नॉट डू इट। ये आया था डेल प्लस ए, मिनिमम डिवीजन नहीं है ये, ओनली डिवीजन। तो डिवीजन वाला में डेल प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस सी, put these values, I will be 50 degree. This question is again very important for boards examination only. You can do it in normal. यहाँ पे ये सरफेस को सिल्वर पॉलिशिंग कर दिया, मिरर जैसा बना दिया, लाइट गोइंग इनटू इट विल कम बैक ओनली इफ दिस एंगल इज 90। जब 90 डिग्री पर इंसिडेंट होगी मिरर के ऊपर, then it will bounce back to the same path. Getting or not? That is your key to solve this question. सिर्फ प्रिज्म फार्मूला नहीं लगाएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दो यहाँ पर, n is equal to sin i by sin r. That's all. Simple case of Snell's law of reflection. I is directly given, r is indirectly given. R you have to find out from the figure and then use the Snell's law. Prism formula is not required here. We can just work out with the law of reflection. And is equal to sin i by sin r. ठीक है, तो ट्राई योरसेल्फ, ये हो जाना चाहिए सबसे बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री है थोड़ी सी, r is indirectly given. ये 30, ये 90, ये मिल जाएगा, और ये नॉर्मल है तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, r मिल जाएगा। ऑलराइट, देखो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आया था पहले, वाटर में डाल देंगे। तो मैंने क्या बताया, लेफ्ट साइड में Ng upon Nw, Ng is the refractive index of prism, that is glass, and surrounding medium का water है। तो put all these value, ये आप सिंप्लीफाई करेंगे, साइन इनवर्स कुछ 0.56 मिलेगा सॉल्व करने के बाद, which is nothing, this is given to you because this is not the regular number. इसका एंगल आता है 30, I mean sin 34, sin 34.3 is 0.56, ये आएगा, और साइन इनवर्स दिस विल बी दिस। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.6। ये खुद कर लेना आप, है ना। ये हिंट आपको जब ये वैल्यू दी होती है, इसके मतलब कहीं ना कहीं ये आने वाला है सॉल्यूशन में, तो उसकी वैल्यू पुट करके फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। व्हाई दीज वैल्यूज आर गिवन, they don't want to supply you the log table in between the examination, that is time consuming and disturbing. So this should be done on your own since it is CBSE board examination question. क्या चेंजेस है इधर लेफ्ट साइड में, डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आल्सो विल बी देयर। वैक्यूम में रहता है तो वैक्यूम एंड एयर में तो 1 से डिवाइड करना पड़ता है, अदर मीडियम में उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना पड़ता है। गेटिंग दिस पॉइंट्स? अच्छा, रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया है, रिफ्रैक्टिंग एंगल मींस ए, मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ दिस बताया था, इट इज नॉट आर। ठीक है, दिस बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन सब आने चाहिए आपको, रिपीट होते। ये भी देखो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, इट मींस इट इज द केस ऑफ minimum deviation. If angle of emergence is 3/4 of the prism angle, so I and E दोनों इक्वल दिए, which is 3/4 of the prism angle, which is 60 degree equilateral triangle, equilateral prism, तो 45 आ गया। उसके बाद फिर ये फार्मूला लगा दो, प्रिज्म फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं, ये डेल एम, जब दोनों इक्वल होते हैं तो डेल बिकम डेल एम, है ना। तो यहीं से आ जाएगा फिर आपका, प्रिज्म फार्मूला की जरूरत ही नहीं, वैसे भी एन नहीं दिया हुआ है ना। अच्छा सॉरी, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा
सॉरी, तो ये आगे अभी अभी यूज करना पड़ेगा आपको ये फॉर्मूला। गुड क्वेश्चन। मतलब आपको पहले डेलम भी कैलकुलेट करना है, देन ओनली यू कैन गो हेड फर्दर, नहीं तो फंस जाएंगे। डेलम तो दिया ही नहीं, कैसे करें? मिनिमम डिविएशन एंगल इज इनडायरेक्टली गिवन टू यू। अच्छा, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले किया ही था, है ना? डिविएशन, मिनिमम डिविएशन 30 था, तो कितना आया था? √2 आया था क्या फर्स्ट क्वेश्चन जो था? Yes, sir. Yes. √2 will be the answer, you can check it. So this is again very good question, boards examination previous question, fit for JEE, fit for NEET also, JEE and NEET. Okay. देखो ये can we do this question? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और कैन वी गो बैक टू द प्रीवियस होमवर्क? चलो प्रीवियस होमवर्क पे जाते। कीप डूइंग योर होमवर्क, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा निकाल के करते रहो, नहीं तो फिर भूलने लगते हैं सब। आई विल रिड्यूस द होमवर्क। आज तो शायद कोई भी नहीं, एक ही क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ये क्वेश्चन थे। ये तो 0 आ रहा था, कितना आ रहा था? फाइंड नेट फोकल लेंथ, इंफिनिटिव आएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना। (1/10 - 1/10) तो 0 हो गए। Therefore f is infinitive, power will be 0. What is happening actually? क्या हो रहा है? देखो ऐसे हो रहा है। और दूसरा लेंस साथ में रख दिया इसको। तो रे जितनी कन्वर्ज हो रही है उतनी डाइवर्ज होकर फिर से ऐसे चली जा रही है, अनडिविएटेड जा रही है। फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट, power is 0, it is not able to bend the light at all, 0 power. That's what is happening in the sunglasses वगैरह में। ऑफ कोर्स उसमें सनग्लासेस में मैंने क्या बताया था, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है RR, और इसलिए वो फोकल लेंथ इनफाइनाइट आती थी, पावर वाज 0। ये इसका क्या आएगा? f जब सॉल्व करेंगे f इज इक्वल टू -60, देयरफॉर डाइवर्जिंग, सेम फार्मूले से। ठीक है, ये हो गया था, ये हो गया था। इसका देखो सेकंड वाले का फार्मूला क्या आएगा? 1/f2 विल बी μ2 - 1, इसका -1/r है, दूसरा 0 हो जाएगा, तो ये माइनस, ओके माइनस ऊपर ही रखते हैं, μ2 - 1 अपॉन r, तो दोनों ऐड कर दो, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो r तो कॉमन हो जाएगा, और ये ऊपर आएगा μ1 - 1, ये माइनस μ2 + 1, तो ये कैंसिल हो गया, μ1 - μ2/r, रेसिप्रोकल भी करना है इसको, f इज इक्वल टू r अपॉन μ1 - μ2, ऑप्शन नंबर डी। कैन यू सी इट?
Yes. ये कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा? Upon value of mu1 and mu2. Suppose both are equal, so f will be infinite. It will be simply glass plate. If mu1 is greater, positive आ जाएगा. If mu2 is greater, then negative आ जाएगा. So depends upon value of mu1 and mu2, it will behave like a converging or diverging or simply glass plate. All right. Okay. Are there or not? Yes, sir. देखो ये वाला क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है. देखो सेम पॉइंट पर जब रेस फोकस होना है, इन्होंने बोला है सेम पॉइंट पे इमेज बन रही है और पीछे मिरर है ना? तो मिरर से रेस वापस आएंगी पैरेलल, इसके पैरेलल पड़नी चाहिए और आई मीन परपेंडिकुलर टू द मिरर पड़नी चाहिए, वापस आ जाएंगी उसी पाथ से. परपेंडिकुलर ऐसे मिरर में देखो ऐसे समझ लो. यहाँ पे परपेंडिकुलर आएंगी, वापस चली जाएंगी. तो behind the lens they happen to be parallel lens, so they will meet at the focal point. वहीं पे इमेज बनाएंगी वापस जब रिटर्न होगी. तो इसमें क्या दिया उन्होंने? फर्स्ट केस में 30 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट भी 30 सेंटीमीटर, इमेज भी 30 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब फोकल लेंथ 30 होगा उसका. तो f30 है. तो सॉरी r आ जाएगा यहाँ पे. f30 है तो r आ जाएगा. r भी 30 आ रहा है लेंस मेकर फार्मूले से. सेकंड केस में क्या है? वाटर फिल कर दिया नीचे. अभी दो लेंसेज बन गए, एक कॉन्वेक्स है, एक कॉनकेव है, वाटर लेंस भी बन गया. अभी 45 पर इमेज फॉर्मेशन हो रही. नाउ नेट फोकल लेंथ हैज बिकम 45 और इसकी तो 30 दी है लेंस की, कॉन्वेक्स की. तो वाटर लेंस की फोकल लेंथ, वाटर नहीं है वो लिक्विड है, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, उसकी 90 आ रही. कॉम्बिनेशन है लेंस के फार्मूले से. दिस इज 45, दिस इज 30, 90 आ गई. तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाना है, निकालना है. तो फिर से अपना व्हाट विल हैपन, लेंस मेकर फार्मूला यूज करेंगे. यहाँ पे n लिक्विड आ जाएगा और ये अपन ने -90 निकाली है. लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. रेस कर्वेचर तो वही रहेगा जो जितना ये है. एक तरफ तो फ्लैट है, वो दूसरी तरफ ऐसा रहेगा, ये ऐसा बन जाएगा. कॉनकेव ऐसा बनेगा देखो. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस रहेगा, माइनस. यहाँ पे बाद में वैल्यू पुट किया क्या? हाँ यहाँ पे पुट कर दिया हमने, माइनस के साथ पुट कर दिया, बाद में प्लस पुट कर दिया बाद में. ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो डायरेक्ट. एक मिनट, -30 कंफ्यूजन होगा. -30 पुट कर दिया हमने. और व्हेन यू सॉल्व इट तो ये यहाँ पे 30 आ जाएगा. और इधर आपका -90 लास्ट बाद में यहाँ पे पुट कर रहे हैं. इफ यू सॉल्व इट तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिवनेस 4/3 आ रहा है. ठीक है, तो दैट मीन इट इज वाटर. तो यहाँ पे की पॉइंट क्या था बताओ? एक तो इन्होंने दिया है जहां पर ऑब्जेक्ट है वहां पे इमेज बन रही है और मिरर से रिफ्लेक्ट होके आ रही है. देखो ऐसा समझ लो. थोड़ा सा डायग्राम में और पीछे करता हूँ इसको, यहाँ पे लेता हूँ थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए. ऐसा समझो, यहाँ पर जब रेज इसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ेंगी तभी तो वापस जाएंगे. ये मिरर है. इसका मतलब फिर ये रेज ऐसे आ रही तभी तो फोकल पॉइंट पे फिर से ज्वाइन होगी. पैरेलल रेज कहाँ पे ज्वाइन होती है? फोकल पॉइंट पे. देन ओनली इमेज ऑब्जेक्ट विल बी देयर ओनली. अदरवाइज फोकल पॉइंट पे इमेज नहीं बनती. ऑब्जेक्ट अगर फोकल पॉइंट पे है तो इमेज वहां नहीं बनती है.
but it is a different case. It is the combination of lens and mirror. Therefore, mirrors पे जब rays parallel जाके parallel वापस, I mean the perpendicular mirror आपस में parallel है वो, तो perpendicular mirror जाएंगी, तो they happen to come to the parallel, and therefore they will be getting focus on the focal point only. Then only image is formed at focal point. Otherwise, it is never. ठीक है, तो ये इस सिस्टम का फोकल पॉइंट का काम करेगा, तो इसलिए फोकल लेंथ हमने 30 ली है, अदरवाइज वी कैन नॉट टेक इट। और यहाँ पर 45 लिए नेट कॉम्बिनेशन, तो यहाँ से हमें फोकल लेंथ का फोकल लेंथ का भी आइडिया लग गया और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मिल गई। यहाँ पे दो लेंसेज है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज किया, तो हमें लिक्विड लेंस जो नीचे बना है उसकी फोकल लेंथ मिल गई। तो लिक्विड, अभी हमने फिर से लेंस मेकर फॉर्मूला लगाया लिक्विड लेंस के लिए, उसकी फोकल लेंथ मिल चुकी थी। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इस लेंस की है वो सेम होगी, साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये -30 आएगी। अदर वन इज द फ्लैट सरफेस बिकॉज इट इज इन कॉन्टेक्ट विद द प्लेन मिरर, उसकी इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा इधर। इफ यू सॉल्व इट यू गेट द 4/3। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं, बट इट इज पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक। It can be asked in JEE and NEET very easily, fit for JEE even. Could you get what I explained you? Yes, sir. This one. So ये आप you should know this question. Those who are going for competitive examination. इसमें देखो मैंने कल क्लू दिया था आपको कि एक बीच में जो वाटर लेंस बनना है उसकी फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। वाटर की रिफ्रैक्टिवनेस 4/3 होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो जो इनका है लेंसेज का वही लेना पड़ेगा, कितना होगा फिर वही होता है। अगर रिफ्रैक्टिवनेस 1.5 होती है तो जितनी फोकल लेंथ होता है उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका फोकल लेंथ कितना दिया, f दिया है, तो यहाँ पर r की यहाँ पर क्या पुट करेंगे, ओके यहाँ पर हमने साइन कन्वेंशन से दोनों r पुट कर दिए, ये वाला माइनस है और इधर वाला प्लस आ रहा है, ये पुट कर दिया हमने। यहाँ पे माइनस साइन रहता है इसलिए चेंज नहीं हुआ, तो ये -2/r। r की वैल्यू हम f पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट किया हमने। तो यहाँ पर जो वाटर लेंस है उसका फोकल लेंथ कितना मिला हमें, ये मिला -1/f2 डायरेक्ट। इसको इन्वर्ट नहीं करने बिकॉज हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में 1/f में पुट करना है। इट इज कमिंग टू -2/3f। ठीक है, तो अभी 3 लेंसेज हो गई है, ठीक है, तीनों को ऐड कर देंगे हम अपने लेंस में, अपना कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से। 1/f1 इज f ओनली, ये बीच वाले लेंस का ये है और लास्ट वाले लेंस का भी f है, 1/f हो जाएगा यहाँ पर। तो इफ यू टेक द एलसीएम एंड सॉल्व इट, तो 3f बाई कितना आ रहा है, ये 6, ये 4 आ रहा है ऊपर, तो पलट देंगे बाद में। इधर लेफ्ट साइड में 1/f नेट है, it will become f net is equal to 3f/4। तो ये आपका नीट में आया था, दिस क्वेश्चन मुझे लास्ट ईयर नीट। तो बोर्ड के लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है ये, बट इम्पोर्टेंट फॉर जेईई एंड नीट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एनीथिंग यू वांट टू क्लैरिफाई? इसमें कुछ पूछने का फिर से आपको, सेम क्वेश्चन? यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है आपकी। मैंने बोला क्या बताया था, सभी लेंसेज का फोकल लेंथ एयर में निकलना है, ऐसा नहीं निकलना है NW/NG। तो बोलो सराउंडिंग में तो दोनों तरफ ग्लास है तो NG से डिवाइड नहीं करना है। ऑल 3 lenses will have the focal length in vacuum, then they will be added with this formula। इसका भी हमने वैक्यूम या एयर में निकाला, दोनों तरफ एयर ले लो या वैक्यूम ले लो, तो डिवाइड बाय 1 ही रहेगा, तो वाटर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी रिमेनिंग। हेलो सर, थोड़ा सा मैं इंटरप्ट जी, करती हूँ सर, मुझे एक 15 मिनट का ब्रेक लेना है और फिर मैं स्टार्ट करूंगी, इनका क्लास बाद में है, तो मैं Okay, children. 8:15 जी। तक मैं शुरू कर दूंगी सर। थैंक यू सर। Clear to all? You can have the break, but meeting का क्या करना है? Just I am logging out. You can have the break and let the meeting continue. 15 minutes के बाद join करिए। All right? Sir,
Yeah. Can you show today's homework question once? Okay, I think one question was there, वो मेरा अपना प्रिज्म का था ना, ये वाला. Thank you, sir. Okay, I am logging out. Okay, just let me check first who is the host. अच्छा, मैं host हूँ क्या? Shall I make the host to somebody? मैं there. Let me put.